একদিকে যখন ভারত পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনার পারদ চড়ছে, তখন অন্যদিকে বাংলাদেশের বাড়ছে চাপ। কারণ ভারত এই উত্তেজনামূলক পরিস্থিতিতে ভারতে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের নিজেদের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে, এমনটাই অভিযোগ তুলছে বাংলাদেশ। भारतेर এই কার্যকলাপকে তারা পুশিং বলছে। बांग्लादेश ने भी अब हिंदुस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है। पुशिंग, जी हां, अदले का बदला। अब जो इंडियन बांग्लादेश के अंदर घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश के अंदर जो इलीगल भारतीय सूरमा छुपे हुए हैं, अब उनको सबको एक एक कर कर पकड़कर बांग्लादेश की जो हुकूमत है उनको निकाल रही है, वापस भेज रही है हिंदुस्तान में। यह होता है जवाब। इसको कहती हैं रिस्पॉन्ड करना, इसको कहती हैं अदले का बदला। जी हां, और पुशिंग, जिस तरह से बीएसएफ बांग्लादेशियों को, यानी वो बांग्लादेशी है भी नहीं, उनको भेज रही है जबरदस्ती। अब बांग्लादेश ने भी डंडा उठा लिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमी एहसान खान और अपना देखछन एहसान खान यूट्यूब चैनल। आशा करी अपना शुभाई वालो आचन। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वक्त ये ट्रेंडिंग पर है, बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं, बातचीत हो रही है। कैसे जिनको जबरदस्ती बांग्लादेशी बनाकर इंडियन को बांग्लादेश में भेजा जा रहा है, जो एक हिंदू धर्म से जिनका ताल्लुक है, और फिर जो 1971 से पहले 1971 से पहले ही वो इंडिया में थे, और उनको अब बांग्लादेश में भेजा जा रहा है ये कहकर के ये बांग्लादेशी, हालांकि उनके पास जो आइडेंटिटी कार्ड है वो हिंदुस्तान का है, उनके पास जो राशन कार्ड है वो हिंदुस्तान का है, लेकिन उनको भेजा जा रहा है जबरदस्ती बांग्लादेश में। और रोहिंग्या के जो लोग हैं, रोहिंग्या के रेफ्यूजीज कुछ लाख 1.5 के करीब हिंदुस्तान में भी रहते हैं, उनको भी जबरदस्ती धकेला जा रहा है, पुश किया जा रहा है, पुशिंग किया जा रहा है बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश भी अब हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालकर दोस्तों बात कर रहा है। हिंदुस्तान भी पीछे हटने वाला नहीं है, हिंदुस्तान भी आगे से ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है बांग्लादेश हिंदुस्तान को। जी हां, और बांग्लादेश जिस तरह से जवाब दे रहा है वो काबिले तहसीन है, शाबाश। और दोस्तों, किस तरह से अब जो बांग्लादेश के अंदर घुसपैठिए हिंदुस्तानी हैं उनको निकाला जा रहा है, उनको पुशिंग की जा रहा है, उनको वापस भेजा जा रहा है, उनको धकेला जा रहा है, उनको अब कहा जा रहा है कि अब मजीद आप इधर नहीं रह सकते, यानी बांग्लादेश में। दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड একদিকে যখন ভারত পাকিস্তানের সংঘর্ষ চলছে, অন্যদিকে চাপে পড়েছে বাংলাদেশ। তার কারণ ভারতে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের ওপার বাংলায় ফিরিয়ে দিচ্ছে ভারত সরকার, আর এতেই চাপে পড়েছে বাংলাদেশের সরকার। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ ভারত সরকারকে চিঠি লিখেছে এই নিয়ে। একদিকে যখন ভারত পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনার পারদ চড়ছে, তখন অন্যদিকে বাংলাদেশের বাড়ছে চাপ। কারণ ভারত এই উত্তেজনামূলক পরিস্থিতিতে ভারতে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের নিজেদের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে, এমনটাই অভিযোগ তুলছে বাংলাদেশ। ভারতের এই কার্যকলাপকে তারা পুশিং বলছে। তাদের কথায় সিলেট, মৌলভীবাজার, খাগড়াছড়ি, কুড়িগ্রাম, সাতক্ষীরা এবং সুন্দরবন থেকে কিছু নাগরিককে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়। গত 2 সপ্তাহে যার পরিমাণ 340 জন। এর জেরে বাংলাদেশের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে। তবে বাংলাদেশ সরকার দাবি করছে যাদের ফিরিয়ে দিচ্ছে ভারত তারা প্রত্যেকেই বাংলাদেশি নাগরিক নন। তাদের মধ্যে কিছু রোহিঙ্গা রয়েছে, যেমন বিজেপি সীমান্তে প্রায় 262 জনকে ধরে। তাদের মধ্যে 223 জন বাংলাদেশি নাগরিক এবং 19 জন রোহিঙ্গা। এমনকি দাবি করা হচ্ছে সাতক্ষীরা সীমান্তে কোস্টগার্ড 78 জনকে ধরে ফেলে। তাদের মধ্যে 3 জন ভারতীয় নাগরিক থাকার কথা দাবি করছে তারা। আর এই ঘটনায় বাংলাদেশ এবার ভারতকে চিঠি পাঠিয়েছে। জানা যাচ্ছে 9 মে বাংলাদেশ একটি চিঠি লিখেছে ভারতকে।
সেখানে ঢাকার তরফে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে, যদি অনুপ্রবেশকারীরা বাংলাদেশি হন তাদের আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হবে, কিন্তু জোরপূর্বকভাবে দেশে ফিরিয়ে দেওয়া গ্রাহ্য হবে না। বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান জানান, সরকার প্রতিটি মামলা আলাদাভাবে তদন্ত করছে। এমনকি সূত্র মারফত খবর পাওয়া যাচ্ছে, যদি ভারত পশ্চিম কার্যকলাপ বন্ধ না করে তবে পুশব্যাক করবে ঢাকা। ভারত গোটা দেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে যেমন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক পদক্ষেপ করেছে, তেমন বাংলাদেশ থেকেও যদি ভারত তেমন কোনো ইঙ্গিত পায় তবে একই অ্যাকশন হবে। আর তাই তল্লাশি করে চিহ্নিত করে অবৈধ নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে দিচ্ছে ভারত সরকার। ভারত পশ্চিম কার্যকলাপ শুরু করতে সীমান্তে বাড়ানো হয়েছে বিজেপির কড়া নজরদারি। অন্যদিকে ভারতের তরফে বিএসএফ এর নজরদারি চলছে কড়াভাবে, যাতে কোনোভাবেই অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারীরা ভারতে প্রবেশ করতে না পারে। যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত জঙ্গি দমনে সচেষ্ট, ঠিক অন্যদিকেও ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতেও কোনো অবৈধ নাগরিক যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেটা নিয়ে বাড়ানো হয়েছে বিএসএফ এর টহলদারি। তবে যেভাবে ভারত পদক্ষেপ করছে তাতে বিপদে পড়ছে বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, कूटनैतिक स्तरे नतून विरोधेर जन्म दिच्छे। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है कैसे जनाब अब बांग्लादेश ने भी स्टैंड ले लिया है अगेंस्ट जो इंडियन। देखें, बहुत सारे जो हिंदुस्तानी हैं वो बांग्लादेश में रहते हैं, बिहारी, और वो अब उनको निकालने का अब बांग्लादेश की हुकूमत ने ये फाइनली डिसीजन ले लिया है कि वक्त आ चुका है, अब उनको निकाला जाएगा। देखें, जबरदस्ती जो बांग्लादेशी, जिनको जबरदस्ती बांग्लादेशी बना दिया गया, वो इंडियन है, इंडिया में रह रहे हैं 1971 से पहले, और उनका जो राशन कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, वो इंडिया का है, लेकिन उनको ये कह कर के भाई ये बंगला बोलते हैं, लिहाजा इनको बांग्लादेश में भेज दिया जाए। और हिंदू जिनका धर्म है, और उनको भी कहा जा रहा है कि भाई आप जाएं, यानी पुशिंग की जा रही है। इस तरह से अजीब मतलब सूरत हाल है। तो इसके पीछे क्या एजेंडा दोस्तों हो सकता है? यानी क्या कोई दहशतगर्दी करवाना है, क्या कोई टेरर करवाना है, क्या इसके अंदर रॉ के एजेंट्स भी हो सकते हैं, और क्या कुछ हो सकता है? इसके पीछे क्या, कौन सा हाथ हो सकता है? क्या करना चाहता है हिंदुस्तान बांग्लादेश में? यानी बांग्लादेश में कोई वो अपने आतंकवाद भेजना चाहता है? पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान है, आपको पता है कि वो आतंकवाद जो बड़े बड़े हमले है वो करवाता है। कनाडा में करवाया, पाकिस्तान में करवाया, अफगानिस्तान में करवाया, इसी तरह दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में ये जो हिंदुस्तान है ये इस तरह के हमले करवाता आया है। लेकिन क्या वो बांग्लादेश में कुछ इस तरह की मतलब चलाकी या साजिश करना चाहता है? तो बांग्लादेश ने भी आगे से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है दोस्तों। तो बांग्लादेश ने भी जो घुसपैठिए हैं उनको निकालना शुरू कर दिया है हिंदुस्तानियों को। आपका क्या कहना है दोस्तों? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।